So Maritime Labour Convention basically is for us basically rights of seafarer. Earlier we didn't have any rights. We were suppressed by the shipping companies and we were at their mercy. Whatever food they were giving, we had to eat. Now after MLC, the PSC inspection is making the ship owners aware, making the ship owners aware of their duties, which they were not doing earlier. So earlier, the wages was a problem. They were never giving the wages. The food was bad. The accommodation was bad. Living conditions on ships was not good. You could not protest because the PSC never used to check these things. They only used to check SOLAS or MAPOL or the other regulatory requirements, but not the living conditions and food. Only after MLC came, they started making inspections of these areas for the welfare of seafarers, that is your provisions, your food, your living conditions and all, and the wages. Now, this was a very vital step because there were earlier a large number of ILO conventions which were dealing with maritime sector, but they were lacking ratification. Ratification means enforcement. There was no enforcement for these ILO conventions. There was no uniform application. There was duplication. Therefore, the need for Maritime Labour Convention came up, which was enforced. So it was adopted in February 2016, but it came in force on 20th August 2013, that is after 7 years, because the ratification required the signatures of IMO member countries. So India has ratified now. अभी तो उसमें लिखा है not ratified, but they have ratified. I'll just check when they ratified. ये डेट मैं चेक कर लूंगा. When did India ratify? उसको correct कर दो. When did India ratify MLC? Now MLC, if you have, these are the 5 titles of MLC. First is the minimum requirements for seafarers to work on ships. क्या minimum age है, क्या requirements है उसका. Conditions of employment क्या है? Because you sign that agreement with ship owner. Basis conditions of employment. Then the third title is accommodation. What kind of accommodation is there? What are the recreational facilities? What is the food and catering? What about internet and all? Everything will come under this. Then the fourth is health protection, medical care, welfare, social security and protection. So nowadays, tooth care, eye care, ear care, everything has been covered by this. Eye care, that means even not accepting the glasses, and tooth care accepting the capping. Other treatments are included in this. And fifth title is compliance and enforcement. So the compliance by the flag state and enforcement by the port state control. Now, what are the 4 layers of MLC? That are articles, regulations, Code A, which is mandatory, and Code B is advisory. So article regulations will give out your core rights and principles and the basic obligations of member states which ratify your convention, whereas the details are contained in the code for implementation of regulation. So Part A is having the mandatory regulations, while Part B is non-mandatory. It is just guidelines or advisory. What are the titles of MLC which we have done in the circles, like the 5 rings of Olympics? So these are the 5 rings of MLC. One is minimum requirements for seafarers to work on ship. Number 2 is the conditions of employment.
Number 3 is the accommodation and recreational facilities, food and catering. And number 4 is health protection, medical care, social and welfare protection, welfare and social protection, compliance and enforcement is title number 5. So what are the flag state responsibilities for basis MLC? They will issue your maritime labor certificate, and this certificate has to be complemented by declaration of maritime labor compliance, or DMLC. Now, what is DMLC? It is a prima facie evidence, that is the first-hand evidence that the ship has been duly inspected by competent authority of flag state regarding your labor standards on board. So what are the maritime labor certificate declaration? ये अभी इसके बारे में करेंगे. And how will the respect for new convention be enforced? The responsibility becomes of flag state and port state control to enforce it. So your MLC is divided into 5 titles. We'll give the details now. First title is minimum requirement to work on ship. So the minimum age is not less than 16 years allowed to work on ship, and a person below 18 years is not allowed to do the night watch, that is from 9 to 5 a.m. तो आप लोग जब join किए थे तो were you complying with this? When you joined the ship, were you complying with this? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब आपने join किया था, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन होता है. नहीं कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन. तो कोई 18 साल से कम था जब ज्वाइन किया था और रात की ड्यूटी कर रहा था, ऐसा था क्या? No, sir. No, sir. कोई नहीं No, था. sir. ठीक. No, sir. बट पहले होता था, इसीलिए. फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन होगा, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट होगा. टाइटल 2 में कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा. इसमें आएगा सीफेयरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और इसी में आपका आवर्स ऑफ रेस्ट एंड आवर्स ऑफ वर्क आएगा. अब आपके STCW में भी आवर्स ऑफ रेस्ट आवर्स ऑफ वर्क है, और MLC में भी आवर्स ऑफ रेस्ट एंड आवर्स ऑफ वर्क है, लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा, वो बताएंगे बाद में. So hours of work in MLC is 14 hours. तो इसमें हम स्ट्रेस करते हैं आवर्स ऑफ वर्क में, और STCW में आवर्स ऑफ रेस्ट की बात करते हैं. बात वही हो जाती है. आवर्स ऑफ वर्क की बात करो तो आवर्स ऑफ रेस्ट अलग से दिखता नहीं है, मतलब है, बट हम आवर्स ऑफ वर्क की बात करते हैं बेसिस MLC, और STCW में आवर ऑफ रेस्ट की बात करते हैं. सो मैक्सिमम वर्क इज 14 hours in 24-hour period, and एक हफ्ते में 72 hours is maximum amount of work you are supposed to do. पर ऐसा आपके साथ होता नहीं होगा. होता था क्या? एज कैडेट आप लोग तो कई बार लगातार 72 आवर्स भी काम करते थे, बट एडजस्टमेंट हो जाता था, है ना? तो ऐसा होता नहीं था, सिर्फ पेपर में होता था. सर ये सब पेपर में है, ऐसे रियल में थोड़ी है. एक्चुअली 18 घंटे काम करते हो, बट दिखाना है 14 आवर्स, नहीं तो PSC पकड़ लेगा. अब आवर्स ऑफ रेस्ट स्पेसिफाई किया गया है कि 10 घंटे आपको चाहिए 24 घंटे में, एंड 77 आवर्स 7 डे पीरियड में चाहिए. अब इसमें आपका लीव एंटाइटलमेंट भी होगा कि कितना काम करोगे तो उसके हिसाब से लीव मिलेगा. वेजेस रिपैट्रिएशन, मतलब जब साइन ऑफ करोगे तो पोर्ट से घर तक का खर्चा कंपनी देगी, दैट इज रिपैट्रिएशन. सीफेरर कंपनसेशन फॉर शिप्स लॉस और फाउंडरिंग. अब जैसे अभी श्रीलंका में एक्सप्रेस जो है वो जल के डूब गया, तो फाउंडर हो गया और लॉस भी हो गया, तो सीफेरर को कंपनसेशन देना पड़ेगा बेसिस MLC. ठीक है, ये नहीं कि बोला कि कंपनी भी डूब गई, ऐसा नहीं है.
कंपनी को पैसा देना पड़ेगा सीफेरर को फॉर शिप्स लॉस और फाउंड्री, सर और इसके कितना लिए मिलता है बैंक लगभग गारंटी सर? बना के रखना पड़ता है वेजेस का। सर लगभग ये कितना नहीं कि मिलता है बोल इसमें के अभी सर? कंपनी डूब गई, जैसे होता था पहले। पहले होता था ना कि भाई कंपनी बोलती थी हमारे पास पैसे नहीं है, जहाज अरेस्ट हो गया। वरुण में हुआ था, कई कंपनीज में हुआ था कि वेजेस दिए ही नहीं थे साल साल का। तो ये सब आया है अभी, लेटेस्ट में आया है, आई थिंक 1-2 साल पहले आया है, बैंक गारंटी देना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स में आया था एमएलसी, वो भी बताएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने राइट्स तो समझ आए जहाज पे, ये नहीं कि कंपनी आपको दबा ले किसी तरह। इसीलिए नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अरे मैनिंग सर, लेवल्स क्या सर इसमें चाहिए? इसमें भी सर, हाँ बोलो। सर सर इसमें कितना मिलता है सी फेयर कंपनी लगभग नियरली? कंपनसेशन कितना मिलता है वो डिसाइड करेगा आपके एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में डिसाइड होगा ना कंपनसेशन कितना मिलता है। ऐसा थोड़ा है कि आप अपना कोई भी कंपनसेशन लिख दो, उनके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कितना कंपनसेशन होगा, बेसिस दैट। तो सर ये हमें पता कैसे चलेगा एग्रीमेंट में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आता है, किधर आता है ये सब? वो सब लिखा होता है फाइनल पॉइंट्स में, वो आपको नहीं पता होता, फाइनल पॉइंट में लिखा होता है। चलो ऐसा करो, अपनी एग्रीमेंट की कॉपी मुझे सर पीडीएफ ये में बना P&A पॉलिसी क्या होती है? है। P&A कौन सी पॉलिसी जो पॉलिसी? बोलते हैं P&A। नहीं नहीं, पीएनआई क्लब की, वो पीएनआई क्लब इंश्योरेंस है। आपकी लाइफ, आपको इंजरी हुई या यस सर। डेथ हुआ तो पीएनआई जो है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब यूके का है, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हम कराते हैं। कंपनी में कई पॉलिसीज है ना, शोर में भी, कि एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, आग लग गई तो इंश्योरेंस कराया, इस तरह। वो सर वो जहाज का एलएलसी इंश्योरेंस होता है या क्रू का होता है सर? बेटा अलग अलग इंश्योरेंस होता है। एक होता है जहाज का इंश्योरेंस, पीएनआई क्लब होता है। एक होता है कार्गो का इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। एक होता है पोल्यूशन का इंश्योरेंस, जो सीएलसी में बताया था। सब अलग अलग इंश्योरेंस है। सीएलसी में मैंडेटरी इंश्योरेंस कराना पड़ता है पोल्यूशन का, कार्गो का अलग और इंश्योरेंस है। कार्गो खराब हो गया तो उसका इंश्योरेंस अलग है। जहाज में डैमेज हो उसका अलग इंश्योरेंस है। देन एलएलएमसी जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे हम कार का करते हैं कि किसी को टक्कर लगी तो किसी को और चोट लग गई, उसके कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। एलएलएमसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जिसको हम कहते हैं। तो लॉ बेसिकली समझना पड़ेगा, रट्टा तो मार लो, समझ के मारो तो बेटर है, क्योंकि रट्टा मार के भूल जाते। बड़ा मजेदार है लॉ जो है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्या फॉर्मूले थोड़ा याद करने, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फिर आपका मैनिंग लेवल क्या है, कितने लोग चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, उससे कम पे नहीं काम चलाएं। कई लोग होती है ना कि भाई इतना होना चाहिए, और उससे कम लोग लेके रखते हैं ताकि उनका खर्चा कम हो। तो मैनिंग लेवल्स के हिसाब से काम करना है। फिर आपका इसी में कैरियर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सीफेयर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूडेड है इन टाइटल 2। अच्छा ऐसा करो, आपका जो एग्रीमेंट है, किसके पास अपनी कॉपी है अभी? डू यू हैव द कॉपी विथ यू? यस सर। तो एक बंदा मुझे ईमेल कर दे, ठीक है, तो मैं उससे आप सबको क्लास में दिखा के एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, ताकि आपके ओरल में भी समझ आ जाए। एक बंदा पीडीएफ में भेज दे मुझे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ओके, समझ गया? तो अपना नाम मिटाना चाहता तो नाम मिटा के भेजो, ठीक है, नाम नहीं उसमें डालना चाहता तो नाम हटा के भेजो, ठीक है। ओके। टाइटल 3 आपको पता है ना पीडीएफ में कैसे ठीक करते हैं? पीडीएफ जोरो में जाओ, आप ठीक कर सकते हो, पीडीएफ में इरेज कर सकते हो। आता है कि नहीं? नहीं आता हम लोग से सीखा करो सब। ओके, टाइटल 4। आजकल आपके सर्टिफिकेट मैं साइन करता हूँ, पता है या नहीं पता है? बाद में आपको पता लगे। ओके,
तो टाइटल 3 आपका अकोमोडेशन, रिक्रिएशन, फूड एंड केटरिंग आ गया। अकोमोडेशन में आजकल कैडेट्स को सिंगल कैबिन है, ठीक है, एज पर न्यू MLC हर एक कैडेट का अपना कैबिन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अटैच टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन सिंगल कैबिन में होना है। डबल एक दो कैडेट्स एक में नहीं रहेंगे, ये MLC के लेटेस्ट रेगुलेशन। मैं डिटेल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इतना डिटेल कराना नहीं। जब क्लास कराता था विदाउट PPT तब डिटेल कराता, अब इतना क्या डिटेल करना। रिक्रिएशन एंड फूड एंड केटरिंग, अकोमोडेशन, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, तो आपका जो गेम्स है, देन आपका टीवी है, वीडियोस हैं, ये सारा होना चाहिए। ये इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। फूड एंड केटरिंग शुड बी गुड, और आपका जो कुक है वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय द फ्लैग स्टेट। तो कुक शुड बी सर्टिफाइड बाय द फ्लैग स्टेट, वो भी इसकी रिक्वायरमेंट। नंबर 4 इज हेल्थ प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का मतलब इंश्योरेंस आपका, ठीक है। देन आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर रिटायर करते हैं तो अगर ले ऑफ करेंगे तो कंपनसेशन बेनिफिट्स, ये सब इसमें आएगा। मेडिकल केयर ऑन बोर्ड एंड अशोर, शिप ओनर की क्या लायबिलिटी है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, एक्सेस टू शोर बेस्ड वेलफेयर फैसिलिटीज, मतलब जो आपका सीमेंस क्लब में है उसमें कंपनी विल अरेंज बस एटलीस्ट वंस इन 15 days। देन सोशल सिक्योरिटी होगा आपका, बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेनिफिट्स। टाइटल 5 हो जाता है कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट। तो फ्लैग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्लाई करे ऑन MLC, और एनफोर्समेंट इज डन बाय PSC। ऑथराइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो जब इंस्पेक्शन करेंगे तो फ्लैग स्टेट ऑथराइज करेगी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंस्पेक्शंस। मैरीटाइम लेबर सर्टिफिकेट एंड DMLC ये इशू करेगा फ्लैग स्टेट। इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट इज डन बाय PSC। देन ऑन बोर्ड कंप्लायंस प्रोसीजर होने चाहिए, पोर्ट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैरीटाइम कैजुअलिटीज या एक्सीडेंट्स में कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेबर सप्लाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनफोर्समेंट जो है वो पोर्ट स्टेट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड इट इज नाउ गॉट द पावर टू डिटेन शिप इफ MLC रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट। अब इस पे ध्यान देना, इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। इसी में आपका DMLC पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। और किसी के पास DMLC पार्ट 1 पार्ट 2 की कॉपी है या नहीं है? Anybody's got DMLC पार्ट 1 पार्ट 2 कॉपीज? जहाज से मंगवा सकते हो, जहाज से, क्योंकि नेट पे नहीं मिलती है। यस तो मंगवा लो और फिर मुझे मेल कर दो, सो दैट उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं टोटल डिटेल में, DMLC पार्ट 1 पार्ट 2। तो नेट में उसकी कॉपी नहीं मिलती, तो आप लोग जरा मंगा के मुझे, एक बंदा मंगवा दे, एक तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की कॉपी मुझे भेज दो मेल पे, एंड सेकंड DMLC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की कॉपीज, क्योंकि दोनों में 14 पॉइंट होते हैं। तो कैसे कंप्लाई होता है आई कैन एक्सप्लेन वंस आई हैव द एक्चुअल कॉपीज ऑफ DMLC पार्ट 1 पार्ट 2, अदरवाइज वो नेट पे कॉपीज मिलती नहीं। अब मैनेजमेंट इश्यूज क्या होते हैं? टाइटल 1 इज रिक्वायरमेंट्स टू सीफेयरर्स, फॉर सीफेयरर्स टू वर्क ऑन बोर्ड। क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो अभी आप मंगा सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ DMLC पार्ट 1 पार्ट 2 बाय हैविंग द एक्चुअल कॉपीज विथ मी। है सर गूगल पे, मैं भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, 1 मिनट आपको। चलो, अगर पूरी कॉपी मिलती है तो गूगल निकाल के मुझे फॉरवर्ड कर दो। टाइटल 2 होता है आपकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आप एग्रीमेंट साइन करते हो। टाइटल 3 इज अकोमोडेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, फूड एंड केटरिंग। टाइटल 4 इज हेल्थ प्रोटेक्शन, medical care, welfare and social protection. Title 5 is compliance and enforcement.
तो टाइटल 3 में आपके फिजिकल अरेंजमेंट चेक करेंगे पीएससी, दैट इज आपका अकोमोडेशन कैसा है, रिक्रिएशन फैसिलिटी कैसी है, फूड एंड केटरिंग कैसा है। अब आपके जो इश्यूज हैं ये मैनेजमेंट सिस्टम्स पे इफेक्ट करेंगे, कोर आईएलओ रिक्वायरमेंट्स, कंपनी रिक्वायरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, शिप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, और उसके बेसिस पे जो फ्लैग स्टेट है वो डीएमएलसी पार्ट 1 बना के जहाज को भेजता है। तो उसमें 14 पॉइंट आते हैं जिसको उनको कंप्लाई करना पड़ता है ऑल टाइटल्स। तो उसमें लिखेंगे आप, ये आपके पास है, वो आपके पास है, ये आपके पास है, बेसिस द टाइटल्स ऑफ एमएलसी। तो ये 14 पॉइंट जो है डीएमएलसी में आते हैं, दे आर सेंट टू द शिप ओनर, ठीक है, फ्लैग स्टेट भेजता है। अब शिप ओनर क्या करता है, बिकॉज इट इज बेसिस शिप स्पेसिफिक, ये नहीं कि पूरी कंपनी के हिसाब से, शिप स्पेसिफिक है, तो कंपनी उसी के हिसाब से वो चेक करेगी कि हाँ हाँ मेरे पास ये है नहीं है, उसके हिसाब से उसमें वर्कशॉप बुला के उसको ठीक करा देती है। सपोज अकोमोडेशन में चीजें, वॉश बेसिन टूटा है, ये है, उसको ठीक करा देगी। बाकी चीजें जो इन्होंने लिखा है 14 पॉइंट, उसके हिसाब से कंप्लाई करेगी, और फिर डीएमएलसी पार्ट 2 भर के फ्लैग स्टेट को भेजेगी अलोंग विद डीएमएलसी पार्ट 1 की कॉपी, ये दोनों भेज देगी। पार्ट 1 आया फ्लैग स्टेट से, पार्ट 2 बनाया कंपनी ने बेसिस पार्ट 1 और फ्लैग स्टेट को भेज दिया। अब क्या है कि ये जो है फ्लैग स्टेट, ये रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन को या खुद रिव्यू करेगा डीएमएलसी अगेंस्ट पार्ट 2 अगेंस्ट पार्ट 1 के दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और जब मैच करेंगे तो फिर अपने सर्वे करवाएगा शिप पे कि एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। चलो कागज में लिख दिया क्या हो रहा है, बट एक्चुअली जहाज पे हो रहा है कि नहीं, उसको मैच करवाएंगे बेसिस सर्वे। एक बार दोनों मैच कर गए, देन आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया एंड आपको मैरीटाइम लेबर सर्टिफिकेट मिल जाएगा विच इज वैलिड फॉर 5 years। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस किए है। सर आपको दोनों? अच्छा कर दिया, मैं देख लेता हूँ। ये समझ आया कि मैं एक बार फिर से बताऊं ये वाला क्या प्रोसेस है, एक बार और बताओ, एक बार एक बता बार दो। और बता दीजिए। एक बार और बताओ। अब ये 5 टाइटल के बेसिस पे फ्लैग स्टेट शिप स्पेसिफिक के मतलब हर एक शिप के लिए डीएमएलसी पार्ट 1 बनाएगा बेसिस 14 पैरामीटर्स, 14 पॉइंट बेसिस आपके टाइटल्स, और वो 14 पॉइंट होंगे वो आपको कंपनी को भेज देगा। जब वो कंपनी को भेजेगा, जैसे उसमें लिखा है कि आपके कंडीशन एम्प्लॉयमेंट में कि आपकी लिविंग कंडीशंस में ये होना चाहिए, असाइली होना चाहिए, कैबिन्स में ये चीज होनी चाहिए, केटरिंग में ये सामान होना चाहिए, खाने पीने में ये होना चाहिए, तो ऑल दोस थिंग्स दे हैव टू मैच। तो वो रेलिंग अंदर में टूटी है या सीढ़ियां टूटी हैं, उसको रिपेयर करवा देगा, सब कुछ करके मैच करा देगा कि भाई हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं। कंपनी डीएमएलसी पार्ट 2 भर के अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ पार्ट 1 जो फ्लैग स्टेट ने भेजा, फ्लैग स्टेट को भेजेगा, फ्लैग स्टेट उसको चेक करेगा कि भाई डीएमएलसी पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 से मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो सर्वे के लिए सर्वेयर भेजेगा जहाज पे, फिजिकली वो चेक करेंगे सब कुछ, लोगों से बातचीत करेंगे, सब ठीक है, देन दे विल इशू एमएलसी सर्टिफिकेट। ये है उसका। अब इसमें क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल कार्गो एंड पैसेंजर शिप्स विद ग्रॉस टनेज ऑफ अबव 500 in international trade must be MLC certified, and all other cargo and passenger ships can choose to be voluntary certified। जो छोटे जहाज हैं वो वॉलंटरी करा सकते हैं, लेकिन 500 एंड अबव उनको मैंडेटरी एमएलसी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो सेल नहीं कर सकते। ना सर्टिफिकेशन में 2 एनेक्स हैं, एक है डीएमएलसी पार्ट 1 विच इज डिक्लेरेशन ऑफ मैरीटाइम लेबर सर्टिफिकेट। ये बेसिकली पैरामीटर्स है जो फ्लैग स्टेट भेजेगा, बेसिस दैट कंपनी विल प्रिपेयर डीएमएलसी पार्ट 2 कि हम उससे कंप्लाई कर रहे हैं।
तो ये MLC सर्टिफिकेट है, ये आपको दिखाते हैं। तो इसमें लिखा है इशूड इन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 5 टाइटल 5, तो कंप्लायंस जो होगा इस सर्टिफिकेट से कंप्लायंस होगा ना। सो full designation of state whose flag is entitled to fly by designation address of competent authority जिसने ऑडिट किया था। Particulars of ship आ जाएगा, name of ship, distinguished numbers, port of registry, date of registry, gross tonnage, IMO number, type of ship, name and address. So for ships covered with the tonnage measurement interim scheme adopted, the gross tonnage is that which is included in remarks column of, ये लिखा हुआ है gross tonnage. Ship owner means owner of the ship or other organization or person such as manager, agent or bareboat charterer who's assumed responsibility for the operation of ship from the owner who's assuming such responsibility has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship owner in accordance with the convention, regardless of whether any organizations or persons fulfill certain duties or responsibilities on behalf of ship owner. ये आपका MLC सर्टिफिकेट ऐसे इशू होता है। अब MLC सर्टिफिकेट मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि कई बार ओरल में पूछते हैं व्हिच आर योर स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स ऑन बोर्ड शिप। कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी होते हैं। तो ये फंडामेंटल सर्टिफिकेट है जिसके बगैर आपका शिप सेल नहीं कर सकता। अगर आपका कैंसिल हो गया तो आपका जहाज सेलिंग कैंसिल, अरेस्ट हो जाएगा जहाज। So this is issued by flag state after verification and ship inspection. That is DMLC part 1 and part 2 दोनों comply कर रहे हैं as per national requirements and as per MLC requirements. अब ये चक्कर है, 14 पॉइंट है, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने क्लियर नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैंने मंगवाया आपसे। MLC पार्ट 1 क्लियर नहीं आ रहा था इसमें। तो उसमें फ्लैग स्टेट का स्टैम्प होता है, 14 आइटम मेंशन किए जाते हैं नेशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। So this statement of national requirements is issued by flag state of administration, and one is required for each ship and sets out your flag state requirements. Similarly, DMLC part 2 जो है, ये 14 एरियाज वो साइन करके देता है कि हम इसको इंस्पेक्ट कर लिया और ये सब ठीक है। So this is written by ship owner. So this is statement of completed by ship owner where he declares that he is meeting standard of DMLC part 1, और देन सर्वेयर चेक करेगा कि पार्ट 2 जेन्युइन है कि नहीं, इंस्पेक्ट करेगा जहाज को, और जब वो ठीक हो गया तो फिर वो MLC सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। तो शिप ओनर विद शिप नंबर ऑफ शिप्स, अगर उसके फ्लैग में एक शिप ओनर विद शिप्स अंडर नंबर ऑफ फ्लैग्स आर एडवाइज्ड टू कीप DMLC पार्ट 2 जेनरिक रादर देन वन प्रोड्यूसिंग स्पेशली फॉर फ्लैग स्टेट। इसका मतलब उसने 5 फ्लैग स्टेट है, तो उन्होंने उसके लिए एक ही DMLC पार्ट 2 बना के सबको भेज दिया, वो जेनरिक हो गया। जेनरिक आजकल आपको पता है, जेनरिक मेडिसिन होता है, दवाई लेने जाओ डॉक्टर से, वो एक ब्रांड की दवाई देगा जो 500 रुपए कॉस्ट करती है। केमिस्ट के पास पूछो जेनरिक मेडिसिन है, 50 रुपए की मेडिसिन मिल जाएगी। तो जेनरिक का ये फायदा है। अब इसमें वही फ्लो चार्ट है, फ्लैग स्टेट ने रेटिफाई किया MLC, इंप्लीमेंट किया कन्वेंशन एज नेशनल लॉ एंड इशू किया DMLC पार्ट 1। कंपनी प्रिपेयर्स DMLC पार्ट 2 बेसिस पार्ट 1 और उसको भेज देते हैं। उसके बाद जो फ्लैग स्टेट है या रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिव्यू करता है DMLC पार्ट 2 अगेंस्ट पार्ट 1। तो वो इंस्पेक्ट करेगा कंप्लायंस विद द कन्वेंशन विच इज MLC। They will inspect working and living conditions on board, and then they will endorse part 2 and then issue MLC certificate। ये पूरा आपका किस तरीके से MLC इशू होता है
ये उसका प्रोसीजर है। अब अमेंडमेंट्स आए थे 2014 में, जो एंटर किए हैं 2017 में। They relate to financial security of seafarers in case of abandonment and contractual claims for compensation in case of seafarers' death or long-term disability due to operational illness or hazard. तो अगर सीफेरर की मौत हो गई या उसमें डिसेबिलिटी हो गई तो उसको कंपनी बोलेगी हमारे पास तो पैसे नहीं है। उसके लिए कंपनी को बैंक गारंटी देना पड़ेगा 6 महीने के वेजेस की, प्लस अगर कंपनसेशन देना है तो उसके भी बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर बैंक गारंटी दी तो अगर ये जहाज वाले भाग गए तो उसको उन लोग फ्लैग स्टेट इन कैश करा के पेमेंट कर देगा सीफेरर। So on 18 January 2017, each ship must carry on board a certificate or documentary evidence of financial security to comply with the provisions. And ship owner should amend DMLC Part 2 once the relevant flag state has reissued DMLC Part 1 to address the new MLC provisions. अब आता है इंटरिम MLC, क्योंकि MLC 5 साल का है, तो अगर आपने नया जहाज लिया तो आप इंटरिम ले सकते हो, टेम्पररी MLC जिसको कहते हैं। तो पहला है, अगर आपने डिलीवरी लिया जहाज की, नए जहाज की, तो इंटरिम या टेम्पररी MLC लिया सर्टिफिकेट, या when your flag is changing, या the ship owner assumes responsibility for operation of ship which is new to the ship owner, जैसे सेकेंड हैंड खरीद लिया। So interim MLC should be maybe issued for a period not exceeding 6 months by the competent authority or RO duly authorized for the purpose. उसके बाद actual MLC के लिए पूरा तैयारी। 5 टाइटल आपको बता दिए, 4 लेयर्स बता दिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ MLC क्यों जरूरत हुई। तो आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा MLC के ऊपर। अभी आपने भेजा वो मैं बाद में एक्सेस करूंगा, उससे पहले मैं आपको जरा नोट्स बता दूं। कि सीफेरर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एज पर MLC। एक मिनट ढूंढ ले जरा।
तो आपके डीएमएलसी के जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट होती है कि फॉलोइंग चेकलिस्ट इज जनरल एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द नेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएमएलसी पार्ट 1। और इसमें अभी आपको चेकलिस्ट दिखा रहे हैं क्या क्या आइटम है। तो इसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपके जो फर्स्ट चार टाइटल है, अप्रूवल ऑफ डीएमएलसी पार्ट 2 रिव्यू, यस और नो। देन आपका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, शिपोनर मेजर्स फॉर एम्प्लॉइंग, अगर आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। आर शिपोनर मेजर्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सीफेयरर्स अंडर 16 स्पेसिफाइड इन डीएमएलसी 2। इज नाइट डिफाइंड, रिकॉग्नाइज प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आएंगी। मेडिकल कंडीशंस में आ जाएंगी, शिपोनर मेजर्स फॉर इंश्योरिंग ऑनगोइंग कंप्लायंस विद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें डीएमएलसी पार्ट 2 में आएंगी। Similarly, ensuring seafarers prior to beginning work on ship hold a valid medical certificate and medical fitness examination कराया कि नहीं। Ensure measures for validity of medical certificates is 1 year for under 18, maximum 2 years for other seafarers, and maximum 6 years for color vision certificates. ये सारी चीजें होनी चाहिए in DMLC 2. Then are the shipowners measures and procedures to ensure that urgent cases the permissible obtain for seafarers work on board without medical है कि नहीं for 90 days. Similarly, आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन, तो ट्रेनिंग आपने बराबर कराई कि नहीं, ये सब यस नो में आ जाता है। देन सीफरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, सीबीए जो है applicably sign किया कि नहीं as per national requirements. Seafarers employment agreement has been signed by both seafarer and ship owners or representative. Similarly, ये कई चीजें आ जाती हैं इसमें। Use of license certificate for regular private recruitment and placement. Are the ship owner measures for ensuring ongoing compliance for recruitment and placement? Yes no में आ जाएगा ये। आज और रेस्ट में आएगा ये। आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं नेशनल रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम आवर्स और मिनिमम आवर्स जो है, ये सारे आवर्स ऑफ वर्क में आएगा। आएगा मैनिंग लेवल्स में आएगा। आर द शिप ओनर मेजर्स टू इंश्योर द शिप इज मैन्ड अकॉर्डिंग टू मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट, यस नो में ये आएगा। देन आपके अकोमोडेशन की बात करें तो न्यू शिप में शिप कंस्ट्रक्टर इक्विप्ड आफ्टर डेट ऑफ एमएलसी 2006, और इसके पहले जो आई है वो एग्जिस्टिंग शिप्स होगा। तो न्यू शिप्स में हर एक कैडेट को एक कैबिन मिलेगा। एग्जेम्पशंस को उन्होंने किया है कि नहीं। आर द शिप ओनर मेजर्स टू इंश्योर स्लीपिंग रूम्स एंड मेस आर एडिक्वेटली वेंटिलेटेड। देन कई चीजें इसमें आ जाएंगी, केटरिंग, फूड एंड केटरिंग पे, मॉस्किटोज और ये सारा चीज। फिर फूड एंड केटरिंग में आएगा। आर द शिप ओनर मेजर्स टू इंश्योर फूड इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एंड केटरिंग बराबर है कि नहीं, न्यूट्रिशियस फूड है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन हो रही है कि नहीं, ऑल दैट विल बी चेक। And then they are ensuring supplies of food and drinking water or spaces, equipment used for storage, they should be clean. Then आता है टाइटल 4 हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन, जिसमें adoption of effective implementation and promotion of occupational health and safety policy, ये सारा आएगा। Then onboard medical care, so are they providing seafarers medicine, medical equipment and facilities, and qualified doctor visit to qualified doctor or dentist without delay at port of call, they should allow, that should be free of charge. Are the ship owner measures for preventive character like health promotion on board, ownership measures for use of standard medical report, ये सारी चीज मेडिकल में आ जाएगी।
Then are the ship owner measures for assuring medical advice by radio or satellite communication to ship at sea, including specialist advice available 24 hours a day. Then आपके Title 5 is your compliance. जिसमें are the ship owner measures for implementation of procedures in a format. Are the ship owner ensuring seafarer receipt of onboard procedures including DMLC Part 2. ये सारी चीजें आपकी Part 2 में आ जाएगी. And then payment of voyages कैसे कर रहे हो? Are the ship owner measures for ensuring seafarer wages will be paid in full at no greater than monthly intervals. ये सारी चीजें आएंगी. Part 1 का भी आपको दिखा रहे हैं. तो ये 2013 का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बिकॉज एसीआई के लिए उन्होंने इशू किया है. तो वॉलंटरी इंस्पेक्शन इंडियन शिप्स पे आ गया. तो ये इंस्पेक्शन के लिए फॉर्म भर के रखना है उन्होंने. तो ये डिटेल्स ऑफ शिप, CSR, रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस फी, वेलफेयर फंड, ये सारा कुछ आ जाता है. देन MLC कन्वेंशन में DMLC Part 1 आ गया. शिप का IMO नंबर, ग्रॉस टनेज, ये Part 1 में सारा आ रहा है. मिनिमम रिक्वायर मेडिकल सर्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, सीफेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये सारा कुछ आएगा. और इसका हिसाब DMLC Part 2 में इसका आंसर दिया जाएगा. साइन करके फ्लैग स्टेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट है, वो साइन करके भेजेगा. एग्जाम्पशंस, इक्विवेलेंसीज, ये सारा भेजेंगे. गाइडलाइंस फॉर DMLC Part 1, ये सब गाइडलाइंस आएंगी. मेडिकल सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका जब आप ज्वाइन करते हो. सीफेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए. मेडिकल केयर कैसा होना चाहिए, सो दैट विल बी देयर. और ये साइन करके भेजेंगे. तो Part 2 का जो है ये शिप ओनर साइन करके भेजेगा इसी के बारे में. तो उन्होंने फॉर्मेट देगा, Part 2 ऐसे बना के भेजना है और उसको साइन करके शिप ओनर साइन करके भेजेगा. तो गाइडलाइंस फॉर चेकलिस्ट और MLC इंस्पेक्शन, जो चेकलिस्ट जो सर्वेयर आएगा वो चेकलिस्ट लेके आएगा, चेकिंग करेगा यस नो करके. ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जो हैं, दिस इज 14 पैरामीटर्स. इतने इंस्पेक्शंस होंगे. आवर्स ऑफ रेस्ट, आवर्स ऑफ वर्क, सब चेक होगा. एंटाइटलमेंट फॉर लीव, रिपैट्रिएशन, पैनिंग लेवल, वेंटिलेशन, लाइटिंग, स्लीपिंग रूम्स, मेस रूम, रिक्रिएशन फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटीज, फूड एंड केटरिंग, ये सारा होगा. ठीक है. अब आपका आ जाते हैं क्या था, ड्यूटीज ऑफ सीफेयर अंडर MLC, ये करवाते हैं. कई बार एग्जाम में आया कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीफेयर अंडर MLC. तो लॉ पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना, क्योंकि लॉ बहुत ज्यादा है. पढ़ना अभी से शुरू कर दो और पढ़ोगे तभी समझ आएगा. लास्ट मोमेंट के लिए रखोगे तो फिर हो गई छुट्टी. तो सीफेयर की ड्यूटी क्या है? राइट्स तो दी हुई है MLC में. अब ड्यूटी क्या है? एक तो ही शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रमोटिंग सेफ्टी कल्चर, cooperate with master regarding occupational safety, safety and health policies, participate in OSH meetings, properly use the preventive principles and utilize PPE clothing, use machinery that is properly guarded and not render the guards inoperative, report immediately to immediate supervisor for any situation which can pose as a hazard, has the right to remove themselves from dangerous situations,
communicate effectively regarding safety risk, verify that instructions have been understood, except in case of emergency, seafarers, unless duly authorized, should not interfere with or remove or displace any safety device or equipment and appliances furnished for their protection, or interfere with the method or process. Seafarer is aware of his rights and can show the copy to PSC when asked. The copy of his contract is in his safe custody to be shown to PSC. Ensure the night time age requirements are strictly adhered to. जो आपको बताया था, under 18 years, do not do night watch. Frequent and regular round of accommodation stores, hygiene, cleanliness and upkeep. Ensure chief engineer is monitoring the acoustic and vibration level. तो chief engineer जो है वो vibration and noise level को maintain करेगा, उसका log maintain करेगा. Ensure the recreation equipment is in good condition and usable. Keep a close contact with complement of ship and ensure the complaints. Keep the ship always happy and ensure that you are in state of readiness for labor survey. ये सारा आपको duties of seafarer under MLC आ जाएगा. ठीक है, तो आपके यहाँ कोई क्वेश्चन इस पे तो बताओ. Any questions on this MLC? No, sir. क्लियर है सबको? यस सर. सबको क्लियर है? नोट्स आपके पास आए हुए हैं कि नहीं आए हैं? नोट्स की पढ़ाई शुरू कर दो. नहीं आए तो फिर मेल कर दूंगा. ये सर हैंडआउट में भी है ना? हैं? हैंडआउट में भी है सर, और नोट्स भी आया है सर. नोट्स आए हुए हैं कि नहीं आए? आए हैं ना, तो पढ़ना शुरू कर दो. आ गए सर, आ गए. हाँ, तो नोट्स पढ़ाई शुरू करो भाई, पढ़ाई शुरू करो. यस सर. ठीक है, फिर ब्रेक ले लो भाई, चाय भाई पियो. थैंक यू ओके, सर. वील टेक अ ब्रेक. थैंक यू सर. ओके जी. थैंक यू सर.